In this chapter, we learn about the MS Word. Something is about what is MS Word. You already know what is MS Word. In previous class, we discussed these things already. Okay, so we start with the topic is MS Word. That means what is MS Word? Microsoft Word, in short form, we call it MS Word, is a fully featured word processing program. Basically, we called it word processing program. It allows user to create and manipulate document containing mostly text and sometimes graphics. That means users can create a document and manipulate it. Manipulate means you can change it in it very easily without any problem. And you can add some graphics also like pictures, graph, clip arts, and some shapes and some type of charts like bar chart, line chart. You can add it in MS Word easily. Millions of people use MS Word every day to create documents such as letters, memos, reports, facts, cover sheets, mailing labels, and newsletters. That means millions of persons, millions of people using the MS Words daily for the work. For which work? Like if you want to type a letter, अगर आपको letter type करना है, you can type in MS Word, memos, reports, facts, anything you want to type. Like if you want to make a question paper, if you want to make any report on a MS Word, you can make it. Okay, very easy and normal features available for doing these works. A major advantage of using word processor is that users can easily change what they have written. The major advantage is आप इसमें जो लिखते हो उसे easily change कर सकते हो. ये इसका एक major advantage है. The various features of word like border, shadings, tip graphics, pictures and web address can be included in the document. अपने documents में borders भी add कर सकते हैं, shading that means different colors add कर सकते हैं, tables add कर सकते हैं, graphics that means picture shapes add कर सकते हैं, pictures भी add कर सकते हैं. अगर आपने कोई कंप्यूटर में अपनी फोटो क्लिक करी है अपने डॉक्यूमेंट में वो भी ऐड कर सकते हो. वेब एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. यू कैन इंस्ट्रक्ट वर्ड टू क्रिएट अ टेम्पलेट. वर्ड्स में कुछ टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं और आप इसमें अपनी टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हो. which is form you can use it and customize as per your requirement. Template basically क्या होता है, बने बनाया डिजाइन होता है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके अपना कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज कर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड. You can also send a copy of your Word document to various email addresses. आप जो भी अपने Word document क्रिएट किया आप उसके email एड्रेस पे उसे मेल भी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम. बट इसके लिए बेसिकली हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है. While you type in a variety of languages, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी इसके अंदर लिख सकते हो लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड मेनी मोर. वर्ड कैन डिटेक्ट द सिंटैक्स एरर. ये सिंटैक्स एरर भी डिटेक्ट कर लेता है. लाइक आपने कहीं एक्स्ट्रा स्पेसिंग दे दी है या कुछ एक्स्ट्रा एंटर कर दिया है उसे डिटेक्ट कर लेता है. वर्ड कैन आल्सो फॉर्म टेक्स्ट सच एज हेडिंग्स. आप इसमें हेडिंग क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट, फ्रैक्शंस, बॉर्डर्स एंड वेब एड्रेसेस एज यू टाइप है. ये सब इसमें आप ऐड कर सकते हो इन वर्ड. कुछ फंक्शंस हैं, some functions of MS Word. First is creating. You can create a document and you can insert graphic image, performing other tasks using an input device. बेसिकली हम जब क्रिएट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, अपनी इनपुट डिवाइस का यूज लेते हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, वो अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए. एडिटिंग मीन्स एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंज करना. दिस इज द प्रोसेस टू मेकिंग चेंज ऑन अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ऑन एग्जिस्टिंग कंटेंट. ओके, लाइक कॉमन एडिटिंग फीचर्स लाइक इंसर्टिंग, डिलीटिंग. कुछ आपको इंसर्ट करना है एक्स्ट्रा, कुछ डिलीट करना है, कुछ आपको कटिंग करना है, कुछ कॉपी करना है, पेस्ट करना है. ये सब फंक्शंस आप एडिटिंग के इसमें इजीली यूज कर सकते हो. फॉर्मेटिंग भी आप इसमें कर सकते हो. व्हाट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. आप इससे डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज कर सकते हो. लाइक बाय डिफॉल्ट जब आप टाइप करते हो जो कलर होता है वो ब्लैक होता है फॉन्ट का. आप उस कलर को चेंज कर सकते हो इन एनी ऑफ योर चॉइस. पेज जो कलर होता है वाइट होता है, उस पेज कलर को चेंज कर सकते हो. फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, लाइक अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, आप उसे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. सेंटर एंड राइट भी कर सकते हो. मार्जिन टॉप डाउन एंड लेफ्ट राइट का मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. डिफरेंट थिंग्स हैं जिसे आप कर सकते हो. बोल्ड कर सकते हो किसी टेक्स्ट को. इफ यू वांट टू अंडरलाइन सम टेक्स्ट यू कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. You can change the font style also. So these all features you get available in MS Word or any word processing program. Saving a document. You can save your document for future use.
If you want to save your document, you can save it without any problem for future use. Okay, it's a first, if you are when you're working on a document, that work on the time in a primary memory. Primary memory is called temporary memory also. And once you complete the steps, that means when you save your file, that file you save in a secondary memory. Okay, basically saving is the process of copying a data from memory to a storage medium, like such like hard disk and CD. अपने डेटा को आप रैम से जब कॉपी करते हो हार्ड डिस्क में या सीडी में किसी सेकेंडरी स्टोरेज में, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेविंग. यू ऑल्सो शुड सेव योर डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंटली. आप जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, सेव इट फर्स्ट टाइम, अभी बीच में भी सेव कर सकते हो. कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट की ऑफ सेविंग. the UPS with your desktop, बीच में हम सेव करते रहते हैं, जिससे अगर लाइट चली जाए तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं होती है. ओके, तो इंश्योर योर वर्क इज नॉट लॉस्ट. और ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा वर्क है वो लॉस्ट नहीं होगा इससे. अगर हम सेव करते हैं तो अगर लाइट जाने के बाद भी, या लाइट अगर एक दिन चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, अगर आपने फाइल सेव कर रखी है तो फाइल डेटा में सेव होती है, कभी भी उसे ओपन करके देख सकते हो. व्हाट इज प्रिंटिंग? प्रिंटिंग, वंस यू हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट, एक बार आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, आप उसको फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हो जितनी बार आप चाहो, मैनी टाइम्स, लाइक 1 2 10 100 1000 10,000, जितनी बार प्रिंट चाहो उतनी बार प्रिंट निकाल सकते हो. एंड व्हाट इज प्रिंटिंग? Printing is also the process sending a file to a printer to generate output on a medium such as a paper. Printing क्या है? एक प्रोसेस है जब हम एक फाइल को सेंड करते हैं, प्रिंटर पे कमांड देते हैं, एंड वो फाइल आउटपुट फॉर्म में आती है हमारे पास. किस फॉर्म में? पेपर के फॉर्म में. जो भी आपने लिखते हो आप, वो पेपर पे प्रिंट होकर आ जाता है. दैट कॉल्ड हार्ड कॉपी. और जो आप कंप्यूटर में देख रहे होते हो, दैट कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. जैसे जो अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. जब आप इसे प्रिंट आउट निकाल लोगे, इसका जो बुक होगी अगर आपके पास फिजिकली फॉर्म में, दैट कॉल्ड hard copy. Next is features of MS Word. And we have some features of MS Word like autocorrect. As you type words, the autocorrect feature correct common spelling errors. Like जब भी आप, जैसे मोबाइल में भी autocorrect का फीचर होता है, जब भी आप autocorrect यूज करते हो, कुछ एरर्स ऑटोमेटिकली वर्ड में भी करेक्ट हो जाती हैं. लाइक अगर जब आप टाइप करते हो, ऑटोमेटिक फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है. आफ्टर फुल स्टॉप जब लिखना स्टार्ट करते हो, ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है. दिस इज सम ऑटोकरेक्ट फीचर. ये जनरली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक ऑटोमेटिकली ऑप्शन है, इस फीचर है जो आपकी मिस्टेक्स को ऑटो करेक्ट कर देता है. ऑटो फॉर्मेट. एज यू टाइप, द ऑटो फॉर्मेट फीचर ऑटोमेटिकली अप्लाइज फॉर्मेटिंग टू योर टेक्स्ट. अगर आप ऑटो फॉर्मेट फीचर यूज कर रहे हो तो वो भी कुछ फंक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं. लाइक जब भी आप ऑटोमेटिकली कोई लिस्ट या वेब कन्वर्ट करते हो, या कोई वेब लिंक को हाइपर लिंक में कन्वर्ट करते हो, या भी किसी भी आप वेब लिंक को लिखते हो, लाइक ईमेल आईडी लिखो वर्ड में, एंड जैसे ही आप .com लगाकर हटोगे, वो ऑटोमेटिकली हाइपर लिंक बन जाएगा. दैट मीन ब्लू कलर का हो जाएगा और अंडरलाइन आ जाएगी. ओके, एंड जब आप लिस्ट, कोई भी लिस्ट या किसी भी टाइप के लिस्ट लगाते हो, लाइक 1 2 3 कोई भी लिस्ट लगाते हो, तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हो, सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो ये दिस इज द ऑटो फॉर्मेटिंग. ओके, ऑटो फॉर्मेटिंग क्रिएट सिंबल्स. ऑटो फॉर्मेट की वजह से कुछ सिंबल्स भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, लाइक फ्रैक्शनल ऑर्डिनल नंबर्स. लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन यू टाइप 2 colon and close bracket, you see the simile is automatically this symbol is created automatically in a simile face. Okay, this feature is also available in mobile also. अगर आप डॉट कोलन लगा के उसमें आगे ब्रैकेट लगाओगे तो एक सिमिली स्माइली फेस आ जाएगा और ऑटोमेटिकली स्माइली फेस में कन्वर्ट हो जाएगा. द फ्रैक्शन, अगर आप 1/2 ऑटोमेटिकली अगर लिखते हो, 1-2 1/2 लिखते हो, तो ऑटोमेटिकली वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है वर्ड में. ऐसे ही ऑर्डिनल अगर लगाते हो, लाइक सेकंड लिखते हो अगर 2 and D, ऑटोमेटिकली वो उसके ऑर्डिनल में चले जाता है, ऊपर चला जाता है पावर में, जैसे आपको दिख रहा है सेकंड, ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो कुछ ऑटो फॉर्मेटिंग भी अवेलेबल है, कुछ ऑटो करेक्ट फीचर भी अवेलेबल है आपके वर्ड में. एंड थर्ड वन इज कॉलम्स. मोस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैन अरेंज टेक्स्ट इन 2 or more कॉलम. आपने जितना भी टेक्स्ट है उसको कॉलम्स में भी एडजस्ट कर सकते हो. लाइक न्यूज़पेपर कॉलम्स अवेलेबल फीचर होता है इसमें वर्ड में. उसकी हेल्प से आप इसको न्यूज़पेपर कॉलम की फॉर्म में अटैच कर सकते हो. मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ किस टाइप से होता है ये. ओके, ये न्यूज़पेपर कॉलम फीचर जनरली हमें आपको लेआउट, पेज लेआउट टैब में मिलेगा. इसमें देखो, आप भी देखो 1 कॉलम है, आपसे 2 कर सकते हो तो आपके 2 कॉलम हो जाएंगे. अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है इसलिए आपको कुछ शो नहीं हो रहा है, बट अगर मैं इसको एक बार 1 कॉलम करके कुछ इसके अंदर लिखता हूँ तो आपको क्लियरली
लिख अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं इसमें एक सेंटेंस लिखता हूँ छोटा सा, व्हाट इज कंप्यूटर, सिर्फ इसको ही कॉपी करके आगे पेस्ट करता चला जाऊंगा। Okay, and now after that I convert into a column form. So you see the difference, what is the actual working of column. Like अभी आप देख रहे हो सिर्फ एक कॉलम है, एक ही फॉर्म में टेक्स्ट लिखा जा रहा है। अगर मैं इसे 2 कॉलम में चेंज कर देता हूँ तो देखो आपका टेक्स्ट 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। दिस इज द कॉलम फीचर, दिस दैट कॉल्ड द फीचर कॉल्ड न्यूज़पेपर कॉलम। अगर आप 3 कॉलम में करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो 3 कॉलम्स में एक ही पेज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज योर कॉलम फीचर। ओके, and next is spelling and grammar checker. Spelling is grammar checker is also available. This feature is available. You see, you know what is spelling and grammar checker. Like अगर मैं कुछ इसके ऊपर लिखता हूँ text, I write my name. You see when you write your name, you see my Vishal Bhatti. I write my name. You see the red line on my surname. The red line क्यों आई है? Because according to the dictionary of a word, this word is not available in its dictionary. That means जब भी आप कुछ टाइप करते हो वर्ड में, ये अपने डिक्शनरी में उस वर्ड को चेक करता है every time you check your word in a dictionary. और ये जितनी बार आप करोगे उतनी बार ये टाइप उसे डिक्शनरी में चेक करेगा। उस डिक्शनरी में नहीं मिलता है वो वर्ड तो उसके नीचे आपका रेड लाइन डाल देता है। जैसे इसने मेरा नाम से फर्स्ट नेम मैंने ऐड कर रखा था और सेकंड नेम नहीं कर रखा है, सेकंड नेम के नीचे इसने क्या डाल दिया? रेड लाइन डाल दिया। एंड इसका एक आपके पास इसके 2-3 ऑप्शंस है, इसको कैसे हटाएं। आप इस पर क्लिक करो नेम पर, जो जिसके नीचे भी रेड लाइन है इस वर्ड के नीचे, राइट क्लिक ऑन इट एंड चूज द सजेशन। ये कुछ सजेशन देगा, ये कहता है तो मेरे सजेशन यूज कर लो या इसे इग्नोर कर दो, रेड लाइन हट जाएगी, या इस वर्ड को ऐड टू डिक्शनरी कर दो। तो अगर आपको आप इनमें से कोई भी फीचर यूज कर सकते हो। अगर मैं ऐड टू डिक्शनरी करता हूँ ना, आप देखो बेटा मैं जितनी बार भी अपना नेम लिखूंगा उसके नीचे रेड लाइन नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपना वो नेम डिक्शनरी में ऐड कर दिया है, लाइक दिस। ओके, एंड सेम एज अ ग्रामर चेकर एरर, जब भी ग्रामर कोई एरर आती है तो उसके नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है। और ग्रीन जनरली ग्रामिंग एरर हम ऐड टू डिक्शनरी नहीं कर सकते, वो तो कोई ग्रामर का रूल्स के अकॉर्डिंग ही सेट रहता है। अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेसिंग दे दी है तो भी आपकी रेड लाइन है, ग्रीन लाइन आ जाती है। देखो अभी तो नहीं आएगी बिकॉज अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग दे दी है तो भी आपकी ग्रीन लाइन आ जाती है। आपने कोई गलत फुल स्टॉप लगा दिया है या कहीं पर कैपिटल लेटर नहीं लगाया है, स्मॉल लेटर नहीं लगाया है, या इज की जगह आर यूज कर दिया है, आर की जगह इज यूज कर दिया है, तो इस सिचुएशन में आपकी ग्रामेटिकल एरर आ जाती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करता है आपकी, और इसके नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है। टेबल्स आर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इनटू रोज एंड कॉलम्स। अपनी इन्फॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल की हेल्प से। यू कैन इजीली रीअरेंज रोज एंड कॉलम्स। आप इजीली उन रोज एंड कॉलम्स को रीअरेंज कर सकते हो। लाइक अगर आपने 5 की टेबल चूज की है तो आप उसे कम या ज्यादा कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ I tell you how to add table. In insert option we have a table option. बेसिकली इसमें एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट ड्रैगिंग का, जिसकी हेल्प से आप 10/8 का टेबल ऐड कर सकते हो अपनी वर्ड के अंदर। 10/8 मीन्स 10 कॉलम्स एंड 8 रो। यू सी इसमें 8 कॉलम है, 10 रो है, और आप इसमें ऐड कर सकते हो लाइक दिस। अगर आपको इससे बड़ा टेबल चाहिए तो आप सिंपली पिक ऑन इंसर्ट टेबल, एंड अगर आपको इससे बड़े टेबल की रिक्वायरमेंट है तो कॉलम्स अपने अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो यहाँ पर, लाइक 13 कॉलम्स और 10 कॉलम्स एंड 10 और 15 रोज। ओके, ऐसे आप टेबल ऐड कर सकते हो, उसमें डेटा अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। थिसॉरस इज यू कैन लुक अप सिनोनिम्स वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। जनरली थिसॉरस क्या होता है? थिसॉरस की हेल्प से आप किसी भी वर्ड का अगर आपको सिनोनियम या एंटोनियम सर्च करना है तो थिसॉरस एक ऑप्शन होता है, उसकी हेल्प से ये बहुत इजीली कर सकते हो। एंड थिसॉरस ऑप्शन आपको मिलता कहाँ पर है? तो रिव्यू टैब में जब आप क्लिक करोगे इन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू सी द थिसॉरस ऑप्शन। दिस इज योर थिसॉरस ऑप्शन, एंड थिसॉरस ऑप्शन को ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है? Shift+F7। अगर मैं Shift+F7 को प्रेस करूंगा यू सी थिसॉरस मेरे सामने ओपन हो गया, और आप इसमें जो भी वर्ड लिखोगे, लाइक आई राइट फ्रूट, सर्च इट, सो इट शो मी
the antonyms and synonyms of the fruit. Like I'll type fat. You see, all words are the antonym and synonym are there. Overweight. These are the synonyms, and if you go down and down, these are the antonyms. Slim. And some antonym and synonyms are both are available in thesaurus. You can search it is very easily. Okay. And next is tracking change command and comments. If multiple users work with a document, this topic is also available in your book in this chapter also. And later we discuss this topic very briefly. But I tell you what is actually the tracking change and comments. If multiple user working with a document, अगर एक document आपने multiple user के साथ share कर रखा है, you can instruct the word processing to highlight or color code to change made by various user. That means आप tracking change option को कोई अदर पर्सन में लिखता है तो उसको जो भी वो लिखता है वो एक डिफरेंट कलर से दिखता है और आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो, ले जाना है और वो बता देगा कि ये किसने लिखा है. दिस वे यू कैन सी इजीली व्हाट चेंज हैव बीन मेड टू द डॉक्यूमेंट. इसकी हेल्प से आप इजीली देख सकते हो कि क्या डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस. आप इन्हें एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हो. अगर आपको चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट करने हैं रिजेक्ट भी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ऐड कमेंट्स. इसमें एक ऑप्शन होता है कमेंट ऐड करने का, आप इसमें कमेंट भी ऐड कर सकते हो. ओके, विदाउट चेंजिंग द टेक्स्ट इटसेल्फ. उसमें कोई कमेंट ऐड करने में टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं होता. यूजर वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंट. और ये डॉक्यूमेंट आप कमेंट्स की हेल्प से जनरली जो उसमें काम कर रहे हैं आप अदर यूजर्स, आप उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो. आप उन्हें बता इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है डिफरेंट लोकेशंस पे. मेल मर्ज. This topic is also we discussed briefly in this chapter later, but I explain you some little bit what is mail merge, and macro is also we read in this chapter later. Mail merge, it creates form letters, mailing labels and envelopes. What do mail merge? With the help of mail merge, we can create a letter, we can create a mailing labels, and we can create a envelopes. These things we discuss in a later. And a macro saves your time by combining a series of action in a single time. Like macro जनरली हम रिकॉर्ड करते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि एक्चुअली में इसका यूज क्या है, करते कैसे हैं. ये हमारा जनरली हमारा टाइम सेव करता है. जो एक्शंस हमें बार बार करने होते हैं एक डॉक्यूमेंट में, उनको हम मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो बार बार बहुत इजीली कोई शॉर्टकट की से हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग अगेन एंड अगेन. ओके. And next is starting MS Word. How to start MS Word? It's very simple. You see the steps. Click on Start button. Click on All Programs. Click on Microsoft Office and click on Microsoft Word 2010. And any feature and any version you have. But in Windows 10, the difference is you click on Start button, then you search Microsoft or the Word. You have to go straight on a word processing application on Microsoft MS Word. ओके, जरूरी नहीं है कि आप यही स्टेप्स फॉलो करो, बिकॉज 10 में आपको ऑल प्रोग्राम्स मिलेगा ही नहीं. स्टार्ट बटन तो मिल जाएगा पर ऑल प्रोग्राम्स वाला ऑप्शन नहीं होता है. वहां पर आप सीधा सर्च कर सकते हो. सर्च टाइप हियर टू सर्च का यूज करके, लाइक जैसे मैं अभी स्टार्ट बटन को प्रेस करता हूं अपने, एंड स्टार्ट मेन्यू तो मेरा ओपन हो जाएगा, बट उसमें ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन नहीं होता है. यू सी, ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन ही नहीं है. सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल है. तो आप यहाँ पे सर्च कर लो MS वर्ड या MS ऑफिस. यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर नीचे लिख सकते हो वर्ड. जैसे आप वर्ड लिखोगे टॉप पे आपका वर्ड एप्लीकेशन आ जाएगा. सीधा एंटर प्रेस करना, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा लाइक दैट, जैसे ये मेरे सामने ओपन हो रहा है. ओके. एंड द नेक्स्ट इज द वर्ड विंडो. वर्ड विंडोज लुक लाइक दिस. दिस थिंग वी आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस क्लास. आपने 5th क्लास में भी ये पूरा डिस्कस किया हुआ है हमने. एक बार और डिस्कस कर रहे थे. एंड द टॉप मोस्ट बार वी कॉल टाइटल बार. जो टॉप मोस्ट बार होती है वो टाइटल बार होती है. टाइटल बार में आपको जनरली जो आपका डॉक्यूमेंट का नेम है वो शो होता है बाय डिफॉल्ट. अगर आप खोलते हो डॉक्यूमेंट का नेम, डॉक्यूमेंट 1 आता है, एंड राइट हैंड साइड यू सी द सॉफ्टवेयर नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. द टॉप मोस्ट बार इज टाइटल बार. On the left of title bar you have to see the quick access toolbar. The short form is QAT. And left hand side पे जो आप देख रहे हो टाइटल बार में, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है. लाइक कुछ ऑप्शंस को अगर हम क्विकली एक्सेस करना होता है हमें, तो उन्हें हम क्विक एक्सेस टूल बार में इंसर्ट कर देते हैं. वहां से हम उन्हें क्विकली एक्सेस कर सकते हैं.
एंड टाइटल बार में ही राइट हैंड साइड पे आपका विंडो कंट्रोल बटन होते हैं जिनकी हेल्प से हम विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज कर सकते हैं. And below the title bar you have to see the ribbon tab, that file tab, home tab, insert tab, page tab, page layout tab, references, mailing, review, view, ऐसे multiple tabs होती हैं. That tabs we call ribbon tab. And below the ribbon tab we have the ribbon, and the file tab is also available on the ribbon tab. And file बिल्कुल ribbon tab के नीचे होता है आपका ribbon, जिसको बोलते हैं ribbon. And every tab have a different ribbon, like this is the home tab ribbon, दिस इज द इंसर्ट रिबन. आपको सब में अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे. सब रिबन में जिस भी आप रिबन पे क्लिक करोगे, जिस भी टैब पर क्लिक करोगे उसका रिबन नीचे ओपन हो जाएगा. ओके, ये आपका फाइल टैब. ओके, लाइक दिस. ओके बच्चे, नेक्स्ट इज सॉरी below the ribbon you have to see the insertion point, the blinking line. The line is blinking on the screen. You see this, the cursor is blinking on the screen. I zoom for you. This cursor is blinking on the screen. This cursor we called insertion point. The flashing line blinking on the screen is called insertion point. Okay, and the blank area we called work area. और जितना भी वर्क, जितना भी ये blank area है, white area है, इसको blank work area बोलते हैं, because इसमें वर्क करते हैं. जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं आप इसी पे क्रिएट करते हैं. इसे पेज भी बोल देते हैं और वर्क एरिया भी बोल देते हैं. एंड राइट साइड ऑन द बॉटम यू सी द स्क्रॉल बार्स. या साइड में आपको स्क्रॉल बार्स मिल जाएगा. दिस इज अ स्क्रॉल बार्स. टॉप एंड बॉटम स्क्रॉल बार्स इज अवेलेबल ऑन द पेजेस. दिस इज द बॉटम स्क्रॉल बार एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड दिस इज द वर्टिकली स्क्रॉल बार. ओके, with the help of scroll bar you can move on a page up and down, left and right. Okay, and next is views of document. This is the top bottom of bar is called status bar. सबसे जो नीचे की बार होती है आपकी वर्ड विंडो की, they called status bar. इसमें ही आपको व्यूज मिल जाती हैं. व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर होते हैं, जैसे इसमें भी है ये रे, बिकॉज मेरा जो वर्जन है 2019 है, इसमें आपको व्यूज यहाँ पर सिर्फ 2019 में 3 व्यूज मिलेंगे. यहाँ पर अगर आपको अदर्स देखने हैं तो आपको व्यूज में जाकर यहाँ पर मिलेंगे. अदर व्यूज यहाँ पर हैं और यहाँ पर सिर्फ 2010 में आपको 5 के 5 नीचे मिल जाते हैं, बट 2010 में सॉरी 19 में ऐसा नहीं है. ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट नहीं आती है. इसके साइड में आपको जूम स्लाइडर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपने पेज को जूम और जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो. ओके, एंड नेक्स्ट इज सेम जो हमने डिस्कस किया है वही चीजें यहाँ पर अवेलेबल है जो मैंने आपको बताई है. इन्हें एक बार रीड करना. सेम जो मैंने आपको एक एक बारे में बताया है वही यहाँ पर वन बाय वन उन्होंने पॉइंट्स को एक वन लाइनर में दिखा रखा है, जिसमें हमने ऊपर डिस्कस किया है. And the next topic is creating a new document. How to create a document? The simple way to create a document, when you open a Word file, जब भी आप Word file open करते हो, आपके सामने इस टाइप से ओपन हो जाती है. अगर आप सिंपल जो मैंने स्टेप्स आपको बताए थे ओपन करने के ऑन विंडो 10, आप सिंपल इस टाइप से ओपन हो जाएगी. एक सेकंड वे होता है जैसे इन्होंने दिखा रखा है हमें. ये विंडो 10 2010 के अकॉर्डिंग है. 19 में भी थोड़ा सा कुछ इस तरह का है, बस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना इन्होंने दिखा रखा है. जब भी आप क्लिक करते हो फाइल टैब पे, लाइक मैंने क्लिक किया फाइल टैब पे, एक बैकस्टेज व्यू ओपन होता है आपके सामने. ओके, एंड यू इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओके, और यू हैव टू create a new document, so click on new option is available, and new option you have to now you select on blank document. In Word 2010 the create option is available, but in 2019 not available. Create option is not available. That means 2010 में आपको क्रिएट ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद, बट इसमें नहीं होता है. 19 में क्या है, सिंपल क्लिक करोगे और आपका ब्लैंक इस टाइप से आपके सामने ओपन हो जाएगा. ओके, बट विंडो सेम आपका कुछ विंडो 10 में भी ऐसे, सॉरी वर्ड 2010 में भी ऐसे ही होता है जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है. आप जब आपको क्रिएट पे क्लिक करना होगा, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट on a blank document and the document is opened in front of you like it. Okay, entering text. How to enter text in Word? There is a significant change in the way the text is typing in the document. The insertion point is automatically inserted. जब भी आप ओपन करोगे आपको ये इंसर्शन पॉइंट यहीं पर ऐसे ब्लिंक करता हुआ मिलेगा. और जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हो इसमें, यू सी व्हाट इज अ कंप्यूटर, एंड देन यू सी जैसे ही आप लाइन के एंड में जाओगे, लाइक
सेम ऑटोमेटिकली मेरा इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। जैसे आप लाइन के एंड में पहुंचते हो, जहाँ पर उसका मार्जिन और खत्म हो जाता है पेज का, वो ऑटोमेटिकली आपका इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। ओके, एंड ऐसे सेम आप अगर लिखते रहते हो तो आप इस टाइप से एक पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो, और जहाँ पर आपको लगता है आपको नेक्स्ट लाइन मूव करना है, प्रेस योर एंटर की एंड आप नेक्स्ट लाइन में आपका इंसर्शन पॉइंट मूव कर जाता है। आप नेक्स्ट लाइन की हेल्प से, एंटर की हेल्प से अपने इंसर्शन पॉइंट को अप एंड डाउन, लेफ्ट अप एंड डाउन, सॉरी डाउन मूव कर सकते हो, एक लाइन नीचे ला सकते हो लाइक दिस, जैसे मैं नीचे ले आया। एंड अगर आपको वापस ऊपर जाना है तो आप एरो की हेल्प से अपने कर्सर को ऊपर, लेफ्ट, राइट एंड अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम एरो की हेल्प से अपने कर्सर को मूव कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। इट्स राइट एंड लेफ्ट, डाउन एंड टॉप। नाउ यू नो हाउ टू एंटर टेक्स्ट। जहाँ पर आपका इंसर्शन पॉइंट होगा, आपका टेक्स्ट कीबोर्ड से टाइप करना स्टार्ट कर दो, वहीं से आपका टेक्स्ट टाइप होना स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इज your next topic is selecting text. How to select a text, in which we have some technique to select a text. First is selecting a word. How to select a word? If I want to select a electronic, मुझे electronic word select करना है, double click on it, 1 2। when you double click on any word that's selected, अगर आप किसी वर्ड पे डबल क्लिक करते हो वो सिलेक्ट हो जाता है लाइक दिस। ओके, अगर आपको एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है, सिंपली क्लिक ऑन द सेंटेंस, सॉरी क्लिक द कंट्रोल की and click on the sentence. You see the sentence is selected, click on the sentence, press control key and click on that, the sentence is selected. And now if you want to select a paragraph, अगर आपको एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, उसको कैसे करेंगे हम? ट्रिपल क्लिक करना है आपको। मैंने 3 टाइम्स क्लिक करा कंटिन्यूसली, और ये क्या हो गया, मेरा पूरा पैराग्राफ जितना मैंने लिखा था उतना सेलेक्ट हो गया। ऐसे आप पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हो। This is a very easy technique. Next is selecting any amount of text. ये आप बेसिकली माउस की हेल्प से कर सकते हो। अगर मुझे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, लाइक मुझे सिर्फ कैलकुलेशन फंक्शन सेलेक्ट करना है, यूज द माउस, प्रेस द लेफ्ट होल्ड की एंड ड्रैग योर कर्सर। अब अगर राइट साइड में ड्रैग करोगे तो जितना राइट साइड वाला सेलेक्ट होगा, लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे लेफ्ट साइड वाला सेलेक्ट होगा, एंड डाउन में करोगे तो नीचे का सिलेक्ट होगा चला जाता है। ऐसे आप माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग करके जहां पर आप कर्सर पे अपना क्लिक करोगे वहीं से उसको सिलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड आप सेम टेक्निक, सेम थिंग्स आप कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको शिफ्ट एंड एरो की को यूज करना होगा। लाइक अगर आपको मशीन सिलेक्ट करना है तो आप मशीन से आगे अपने कर्सर को क्लिक करोगे, या एरो की हेल्प से भी मूव कर सकते हैं। नाउ प्रेस ऑन शिफ्ट बटन एंड मूव योर एरो की like this. Now you see, with the help of arrow key, I also select the text. हम arrow key की help से भी text को select कर सकते हैं। Okay. Okay. In update your knowledge, this technique is tell the how to use select the text with the help of shift and with the help of arrow key. You can also press shift plus control key to select for. लाइक शिफ्ट और कंट्रोल की कोई प्रेस करके आप इससे सिलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। ओके, अगर आप शिफ्ट और कंट्रोल की को प्रेस करोगे तो आप वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक वन टाइम वन वर्ड लाइक दिस। इफ यू प्रेस ओनली शिफ्ट की, यू कैन सेलेक्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। And next topic is saving a document. How to save your document? You know, we save our document for future use. अपने फ्यूचर यूज के लिए अगर आपको फ्यूचर में कभी डॉक्यूमेंट कोई ओपन करना है, उसके लिए हम बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। एंड इसको सेव करने की टेक्निक बहुत सिंपल है। आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, Ctrl+S, एंड देन फाइल टैब का यूज भी कर सकते हो। क्लिक ऑन फाइल टैब, सेव ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर, सेव एंड सेव एज, क्लिक ऑन एनीवन। If I click on save as, the save dialog box is open in front of you like this. Okay, this is your save dialog box. Okay, from the left side you select your location where you want to save. Like I want to save this file on desktop. Write your name, your file. Like I write the name is computer only. Okay, and then click on save button.
Now your file is saved in your computer on a desktop in a secondary memory. Okay. And next, the shortcut key is also saving is Control plus S, and the save button is also available in quick access toolbar. This is a save button. You can use this button also for saving a document and saving a file. And next is saving a document in a Word to 1907-2003 फॉर्मेट. अगर आपको एक डिफरेंट फॉर्मेट में अपनी फाइल को वर्ड फाइल को सेव करना है तो आप वो भी कर सकते हो. कैसे करेंगे? लाइक जो उन्होंने फॉर्मेट बता रखा है वर्ड 97-2003 फॉर्मेट, हम उसमें फाइल को सेव करते हैं. And what is this format? First read about it. If you want to open your document in some other computer which is using lower version of Word, like Word 97-2003, like आपने को डॉक्यूमेंट क्रिएट किया Word 2010 में या 2019 में, एंड आप उस डॉक्यूमेंट को पुराने वर्जन के वर्ड में भी देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग से सेव करना होगा. जैसे हमने इसमें 97-2003 के अकॉर्डिंग सेव करते हैं. First click on File tab, click on Save As. When dialog box is open, change the save type. आपको save type change करना है. जैसे मेरा save type है 97-2003 document. Choose that save type. Okay, and then click on Save button. अगर आप इस टेक्निक को यूज करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 2003 वर्ड के अकॉर्डिंग भी सेव हो जाएगा. तो आप वो इस अगर आप 2003 वर्जन यूज कर रहे हो, 97 या 2003 वर्ड यूज कर रहे हो, ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो, तो उसमें भी बहुत इजीली ओपन हो जाता है आपका फाइल. ओके. एंड नेक्स्ट इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ. अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म में या एक्सपीएस फॉर्मेट में भी फाइल को सेव करना है, use these technique. Again, click on File tab, click on Save As, open the dialog box, change the save type. आपको कुछ नहीं करना, आपको सेव टाइप चेंज करना है. आप देखोगे इसमें एक्सपीएस डॉक्यूमेंट और पीडीएफ अवेलेबल है. अगर आप जैसे हम पीडीएफ क्रिएट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट की, अभी हम पीडीएफ क्रिएटर यूज करते हैं, तो आप डायरेक्ट अगर अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लोगे तो आपके डॉक्यूमेंट की ऑटोमेटिकली पीडीएफ बन जाती है. एंड ये एक एक्सपीएस व्यूअर अलग होता है जो आपको विंडोज में, जो आपके विंडोज लैपटॉप में मिल जाएगा. तो आप एक्सपीएस डॉक्यूमेंट पे अपनी फाइल को सेव कर सकते हो. बस आपको सेव एज टाइप चेंज करना है. सेव टाइप चेंज करते ही आप काफी सारी अवेलेबल होते हैं इसमें अपने अकॉर्डिंग. किसी भी एक्सपीएस में एक्सपीएस भी दो है, एक एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, एक वर्ड एक्सएमएल एक्सपीएस. तो बेसिकली हम एक्सपीएस की बात कर रहे हैं बस अभी. एक्सपीएस में आप सिंपल सेव पर क्लिक करोगे और आपका ये सारा जितना भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो एक्सपीएस फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा. The technique is same, but you only change the every time the save type. आपको हर बार save type change करना है. Okay? Know the facts. The PDF format is a universal format that any computer user can open using a PDF reader program. PDF format को हम universal format भी बोलते हैं. किसी भी टाइप के कंप्यूटर में आप PDF रीडर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में होना चाहिए. आप PDF फाइल को ओपन कर सकते हो. एंड काफी सारे PDF फ्री PDF रीडर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, लाइक जैसे एडोबे सिस्टम, फ्री एक्रोबैट रीडर. इसके अलावा और भी काफी सारे मार्केट में फ्री एडोबे रीडर या फ्री पीडीएफ रीडर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. नेक्स्ट इज व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट. वर्ड ऑफर 5 डिफरेंट व्यूज दैट यू कैन यूज टू डिस्प्ले योर डॉक्यूमेंट. हमें वर्ड में टोटल 5 व्यूज मिलते हैं. ये व्यूज हमने अपना प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे, 5th क्लास में भी आपको बताए हैं. कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए एक बार और कर देते हैं. These views are print व्यू कौन से होते हैं? प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन, रीडिंग एंड ड्राफ्ट व्यू. एंड व्हाट इज इट? प्रिंट लेआउट व्यू शोज मार्जिन, हेडर एंड फुटर. प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है? आप इसमें हेडर एंड फुटर्स एंड मार्जिन देख सकते हो. लाइक जो अभी व्यू ओपन है हमारे सामने, ये हमारा कौन सा व्यू है? प्रिंट लेआउट व्यू है. वर्क हम जनरली प्रिंट लेआउट व्यू में करते हैं. आप नीचे भी देख सकते हो कौन सा व्यू सिलेक्टेड है? प्रिंट लेआउट व्यू. इसमें टॉप पर आपका हेडर होता है एंड बॉटम में आपका फुटर होता है. दिस हेडर एंड फुटर. एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मार्जिन दिख जाएगा. एंड लेफ्ट साइड पे आपको मार्जिन दिख रहा है जहाँ से व्हाट लिखा है. एंड राइट हैंड साइड पे भी मार्जिन दिख रहा है यहाँ पर फंक्शंस खत्म है. ये कुछ मार्जिन होते हैं दोनों साइड से, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट राइट. यहाँ पर आपको ये सब शो होते हैं. एंड नेक्स्ट इज आउटलाइन व्यू. आउटलाइन व्यू शो द आउटलाइन लेवल्स इन द डॉक्यूमेंट. अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को आप आउटलाइन व्यू में देखोगे, क्लिक ऑन आउटलाइन व्यू, यू सी द डिफरेंट लेवल्स. ये आपको डिफरेंट लेवल्स में दिखाता है. लाइक पैराग्राफ को एज अ लेवल सिंबल्स आगे आ जाती हैं लाइंस के आगे. लाइक मैंने 3 टाइम्स ब्लैंक एंटर प्रेस किया था, उसमें भी इसने आगे सिंबल्स लगा दिए. लाइक इसे एक लेवल समझ रहा है कि एक अलग अलग लाइंस है.
ओके, पैराग्राफ को एक पूरा एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे वहाँ ऑटोमेटिकली आगे एक सिंबल आ जाता है लाइक दिस। ओके, एंड नेक्स्ट इज वेब लेआउट व्यू, डिस्प्ले अ वेब पेज प्रीव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ये अपने डॉक्यूमेंट को वेब पेज प्रीव्यू में देता है। लाइक अपने डॉक्यूमेंट को आप ऑलरेडी अगर आप वेब लेआउट व्यू चूज करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट इस टाइप से दिखाएगा। अगर अपने डॉक्यूमेंट को वेब पर डालोगे, इफ यू डॉक्यूमेंट अपलोड ऑन इंटरनेट, योर डॉक्यूमेंट ओपन लुक लाइक दिस। ये ऑलरेडी हम वर्ड में वेब लेआउट व्यू में जाकर देख सकते हैं, ये फीचर भी अवेलेबल है। अगला होता है आपका फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू, ऑप्टिमाइज योर डॉक्यूमेंट फॉर इजियर रीडिंग। अपने डॉक्यूमेंट को इजीली रीड करने के लिए आप जनरली हम रीडिंग मोड व्यू में स्विच करते हैं। रीडिंग मोड व्यू को फुल स्क्रीन व्यू भी बोलते हैं। ये बताता है आपके डॉक्यूमेंट कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लाइक बुक जैसे ओपन करते हो ना आप, ऐसे आपके सामने ओपन हो जाता है डॉक्यूमेंट, एंड 1 बाय 1 पेज बाय पेज इसे रीड कर सकते हो। लाइक अभी डॉक्यूमेंट मेरा इतना सही है तो इसमें लिखा भी है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर खत्म। ओके, अगर आपको इससे बाहर आना है तो एस्केप की होती है आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस करो, आप इससे बाहर आ जाते हो। एंड आपका एक लास्ट व्यू है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू शोज अ ड्राफ्ट वर्जन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट व्यू में आपको आपका डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट वर्जन मिलता है विदाउट ग्राफिक। लाइक अगर मैं ड्राफ्ट व्यू में अपने स्विच करता हूँ, यू सी द ड्राफ्ट व्यू। अगर मैं इसमें कुछ इमेज इंसर्ट करूँ, लाइक मैं इसमें कुछ इमेज इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको, बिकॉज ड्राफ्ट व्यू में आपको ग्राफिक्स शो नहीं होंगे। जो भी आपने इमेज इंसर्ट की है या कोई भी शेप्स इंसर्ट की है, आई एड फॉर यू द शेप this is called graphic like this. I also add some picture for you that you are easily understand what is it, and this is the picture of my computer. Okay, अब अगर आप से ड्राफ्ट व्यू में स्विच करोगे तो आपको ये ग्राफिक्स दिखाई ही नहीं देंगे। विदाउट ग्राफिक शो करता है आपको ड्राफ्ट व्यू, सिर्फ ड्राफ्ट दिखाएगा, सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। Okay, this is the view of draft view. Okay, and next is your next topic is in this book is zoom in or out. With the help of zoom slider is available on the status bar right hand side. आप इसकी हेल्प से अपने पेज को zoom in and zoom out कर सकते हो without any problem. You can zoom in your page and zoom out your page. Okay, this feature is also available in MS Word. And the in view option, the tab zoom option is also available there. You can select it from there also. You can change the page size according to your choice. आप change कर सकते हो. It's all thing in your hand. Okay. And जब भी आप zoom slider का यूज करके क्लिक करते हो, जब भी आप क्लिक करते हो, आपका 10% करके पेज साइज बढ़ता है। 10% बाय डिफॉल्ट हमारा, अगर नीचे आप देखो राइट हैंड साइड पे, बाय डिफॉल्ट हमारा 100% साइज होता है। अगर आप 10% करके साइज इंक्रीज करते हो तो 10% करके बढ़ता है, और अगर आप कम कर रहे हो तो 10% करके ही वो कम होता है। ओके, अब कंट्रोल की प्लस स्क्रॉल बटन को भी प्रेस करके अपना जूम स्लाइडर कर सकते हो। लाइक अगर आप कंट्रोल की को प्रेस करोगे, स्क्रॉल की होती है आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस करोगे तो उसकी हेल्प से भी अपने पेज को जूम इन जूम आउट इजीली कर सकते हो। ओके, customize status bar. How do we customize our status bar? You see on a status bar we have some options available. Like you see the page options in bottom, in right, left side, the page, how many page in my document. Like this time we have only one document, one page, but showing 1 of 1. Words, how many words type in it, मैंने कितने words type किए हैं ये भी दिखा देता है। लैंग्वेज दिखा देता है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। ओके, इसमें एक स्पेल चेकर भी ऑन रहता है। ये आपका स्पेल चेकर है जो चेक करता रहता है अगर कोई भी मिस्टेक्स आती है। एंड आपको इसमें व्यूज मिलते हैं और जूम स्लाइडर होता है। आप इसमें अदर इन्फॉर्मेशन अदर भी ऐड कर सकते हो, जो है उसे हटा भी सकते हो। लाइक उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन स्टेटस बार, यू सी द मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर। आपने अकॉर्डिंग जिस भी ऑप्शन को हटाना चाहते हो या एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लाइक मुझे कॉलम ऐड करना है, यू सी कॉलम ऐड हो गया। कितने कॉलम है अभी मेरे इसमें डॉक्यूमेंट में? ओनली 1 कॉलम। अगर कॉलम चेंज करता हूँ, अभी लिखा नहीं है इसलिए एक कॉलम दिखा रहा है। अगर मैं लिख दूंगा दोनों कॉलम में तो 2 कॉलम दिखाने लगेगा यहाँ पर। लाइक दिस यू हैव टू चेंज योर डॉक्यूमेंट ऑल्सो। आप इसे चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
ऐसे अपनी कस्टमाइज अपनी स्टेटस बार होता है, आपका कस्टमाइज स्टेटस बार होता है, उसे इस टाइप से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर मुझे हटाना है ये जो मैंने लगाया है, तो आप राइट क्लिक ऑन इट एंड चेंज इट। ओके, सो इस टाइप से ये चेंज हट भी जाता है। नाउ यू नो हाउ टू कस्टमाइज द स्टेटस बार। Next is customize quick access toolbar. How to customize the quick access toolbar? You simply see this is the quick access toolbar and some small arrows are available there. When you move your cursor on there, जब आप cursor अपना यहाँ पर ले जाते हो, show is customizing quick access toolbar. Click on that. And here some options are available that save, undo and redo. If you want to add something on these options, click on it like this. Now open option is add. Quick print is add. If you want to remove it, click on again and deselect them. Okay, like this you can add some options, and if you want to add some option that they're not available here, अगर कुछ options आप ऐसे add करना चाहते हो जो यहाँ पर available नहीं है, click on more command and like font color वहाँ पर नहीं था उस options में, click on font color, add and okay, font color is available now. ओके, और आप डायरेक्ट यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज सेम मोड कमांड में जाओ, क्लिक ऑन दैट एंड रिमूव इट, और यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज quick access to check your update your knowledge. Quick access toolbar is always available as your work in Word. जब भी आप कोई एक्सेस टूलबार वर्ड ओपन करते हो तो आपको ये ऑलवेज अवेलेबल होगा, ये यहाँ पर अवेलेबल होता है। इसकी जनरली आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हो, इसको रिबन के डाउन या अपवर्ड भी कर सकते हो। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये पूछेगा मुझसे शो क्विक एक्सेस टूलबार बिलो द रिबन। इफ आई क्लिक ऑन दैट, द क्विक एक्सेस टूलबार shows there, Q80 in short form we called, and if I click again, it show we can change the location again. Okay, हम इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, below the ribbon, above the ribbon. Okay, you can control the position of the Q80 like this. Okay, this thing I explain you कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। Okay, the other thing how to add other options also, आप रिबन से डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। कैसे करते हैं, I show you like this। मुझे ये वाला ऑप्शन ऐड करना है, click on that, you see the add quick access toolbar options available, click on that, and this option is available on quick access toolbar. You directly add the option from ribbon to quick access toolbar without any problem. Simply right click on this option and click add to quick access toolbar, and now this option is available on quick access toolbar, and you simply click on right click and remove from the quick access toolbar. आप इजीली ऐड भी कर सकते हो और इजीली रिमूव भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एडिंग की शॉर्टकट। हाउ टू ऐड शॉर्टकट्स इन योर वर्ड शॉर्टकट की। ओके, in Word 2010 the ribbon has taken the place of toolbar, and if the appearance of command on the ribbon is not relevant, you can create a keyboard shortcuts for any command you use frequently. जो कमांड आप जनरली बार बार यूज करते हो उसको हम क्या करते हैं, उनके लिए हम शॉर्टकट्स की क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हमें बार बार वहाँ ऑप्शंस पे जाकर क्लिक ना करना पड़े, ना कोई उसमें क्विक एक्सेस टूल बार का यूज भी नहीं होगा, ना रिबन को बार बार जाना पड़ेगा। अब डायरेक्टली जो शॉर्टकट की आपने क्रिएट की है उसको यूज करके उन्हें यूज कर सकते हो ऑप्शंस को। लाइक इसमें स्टेप्स बता रखे हैं, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। फर्स्ट क्लिक ऑन फाइल टैब फॉर दिस स्टेप फॉर द क्रिएटिंग अ शॉर्टकट, and then click on option. In option you see the quick access toolbar option, click on quick access toolbar option, no sorry, customize ribbon, click on customize ribbon option. Okay, and then click on customize ribbon option, open the word option window in front of you, in which you see the customize ribbon option, in which you click on customize keyboard shortcut keys, customize, click on that, and some keys already have a shortcut keys, like मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ जिनकी already shortcut keys होती है, जैसे bold की already shortcut key होती है। If you click on bold, the shortcut keys appear there like this. You can add a different shortcut keys there। जो ऑलरेडी शॉर्टकट की है आप उसे हटा भी सकते हो, बट उन्हें हटाना कोई सही चीज नहीं है, इससे आप भी कंफ्यूज होंगे। बट हाउ टू क्रिएट अ न्यू शॉर्टकट की, आप ये देख लो कैसे न्यू शॉर्टकट की क्रिएट करें। लाइक जैसा आपके बुक में स्टेप बाय स्टेप है, सेम वैसे ही चलते हैं। क्लिक ऑन लेआउट टैब,
Okay, layout tab in which you see the align left. Click on align left. And now इसकी कोई शॉर्टकट कीज नहीं है क्योंकि करंट कीज में कोई भी शॉर्टकट की नहीं दिख रही है आपको. So click on press new shortcut key. Now I want to shortcut key create a Alt plus L. Then first press Alt key and then press L. Now Alt plus L shortcut key is there. Okay, and then click on assign option. When you click on assign option, now assign left की शॉर्टकट की असाइन हो गई है. आप इसको चेक कैसे कर सकते हो ये असाइन हो गई है? आप लेआउट टैब में जाओ, अलाइन लेफ्ट में देखो, इस पर अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन है. यहाँ पर देखो क्या की दिखा रहा है, ऑल्ट प्लस एल जो आपने क्रिएट की है. ओके, सेम यही स्टेप्स यूज करके आप इसको हटा भी सकते हो. लाइक कस्टमाइज, क्लिक ऑन लेआउट टैब. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लेआउट टैब का ही शॉर्टकट कीज क्रिएट कर सकते हो, जिस भी की आप चाहो उसे शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो. बट सिर्फ वो वाली शॉर्टकट की यूज करना जो किसी और की ऑलरेडी नहीं है. जैसे कंट्रोल प्लस एक्स ऑलरेडी कट की शॉर्टकट की होती है, आप उसे यूज नहीं करना. ओके, नहीं कर भी नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड है. अगर आपको ये हटाना है तो आप रीसेट ऑल पे क्लिक करोगे और आपकी जो की है वो रीसेट हो जाएगी. दैट मीन्स ये हट जाएगी. इसका आपको क्लियरली दोबारा अगर लॉर्ड लेआउट पे जाओगे तो यहाँ पर दिख जाएगा. अब कोई शॉर्टकट कीज नहीं आएगा, सिर्फ अलाइन ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट लिखा हुआ आएगा. ऐसे आप शॉर्टकट कीज ऐड एंड रिमूव कर सकते हो. ओके, दिस इज द बेसिक स्टेप्स. एंड इसमें भी सेम स्टेप बाय स्टेप आपको यही समझा रखा है कि हाउ टू ऐड अ शॉर्टकट कीज, किस ऑप्शंस को यूज करना है और कहाँ पर आपको जाना है. ओके, एंड जो करंटली असाइंड है उसमें ये भी आ जाता है कि ये जो शॉर्टकट की हम यूज कर रहे हैं किसी को असाइंड है या नहीं है. मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे. लाइक क्लिक ऑन दैट ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज. लाइक हम सेम चलते हैं. अगर हम लेआउट टैब में ही इसकी शॉर्टकट की क्रिएट करें, लाइक मैं कंट्रोल प्लस एक्स यूज करता हूँ. ओके, ये आपको दिखा देगा कि ये किसको असाइंड है पहले से ही. करंटली असाइंड टू एडिट कट. अगर आप कोई ऐसी की यूज करोगे जो ऑलरेडी किसी को असाइन है तो यहाँ पर आ जाएगा कि ये की किसको असाइन है. ओके, मतलब ऑलरेडी ये किसकी शॉर्टकट की है, कट की शॉर्टकट की है, एडिट कट की शॉर्टकट की है. कंट्रोल प्लस एक्स को हम इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये करंटली असाइंड है, ये ऑलरेडी असाइंड है. ओके, सेम एज आप पता लगा सकते हो कि कौन सी की ऑलरेडी असाइन है और कौन सी नहीं है. जो नहीं है उसके लिए कुछ नहीं आएगा. ओके, and next is using a keyboard shortcut key can be faster and more efficient. Yes, अगर आप शॉर्टकट की यूज कर रहे हो तो आपका वर्क बहुत फास्ट हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है. एंड देन क्लिकिंग अ बटन ऑन द रिबन और द QWERTY बिकॉज यू कैन कीप योर हैंड ऑन योर कीबोर्ड मेंटेनिंग टाइपिंग स्पीड्स. इनसे क्या होता है, आपके कीबोर्ड्स आपके हैंड्स कीबोर्ड पर ही रहते हैं. अगर आप शॉर्टकट की यूज कर रहे हो, बार बार माउस का यूज नहीं कर रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी और स्पीड भी अच्छी होती है कीबोर्ड पर, टाइपिंग स्पीड स्पेशली. प्रोटेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट. You can protect your document by assigning a password to it. It will limit the change other can make to your document. That means if you do the protection in your document, like password protection. Okay, so if someone try to change in your document, you know what is he or she is changing and which type document he modified your document. If something is they're deleting, you already know what is deleting because you provide a private password protection on your document. Okay, basically अगर आप इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा देते हो, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई अदर पर्सन चेंज करता है, ओके, एंड जो भी करेगा उसे पासवर्ड नहीं पता होगा आपको आपका, तो इजीली उसमें नहीं कर सकता है. अगर कर भी देगा तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि उसने क्या चेंज किया है. ओके, इट्स लुक लाइक समथिंग ट्रैकिंग चेंज. Okay, and I show you how we can do the password protection. First, open your Word like this, and like if you write something like this, जैसे मैंने कुछ इसमें लिख रखा है, in review tab, on the right side on a review tab ribbon, the restrict editing option, click on that, and tick all options like limit formatting to selection of styles. लाइक अगर कोई फॉर्मेटिंग चेंज करेगा तो आपको इससे आईडी पता चल जाएगा कि इसमें क्या चेंजेस किया है. अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, नो चेंज. दैट मीन्स एक एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन है कि कोई चेंज नहीं कर सकता. वो जो भी इसमें करेगा, चेंज करेगा तो ये आपको पता चलेगा, वो ब्रैकेट के अंदर शो हो जाएगा किस टाइप से दिखेगा. ओके, एवरीवन सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड चूज यूजर हु आर अलाउड टू फ्रीली एडिट देम.
एक एक्सेप्शंस है, ऑप्शनल है ये, इसे आप टिक कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। या जो भी डॉक्यूमेंट का एक पार्ट है, लाइक यूजर जो भी चूज करेगा उसमें एडिटिंग फ्रीली कर सकता है, बट आपको पता चल जाएगा। ओके, आप इसे अनटिक भी कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने कर दिया। इसमें अगला है स्टार्ट इन्फोर्समेंट। आर यू रेडी टू अप्लाई दिस सेटिंग्स? यस, क्लिक ऑन दैट, create your password like this and same password type again and click on OK. And now if someone try to change it, अगर आपने एक्सेप्शनल वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है, उसमें एक्सेप्शनल वाला ऑप्शन चूज नहीं किया है, तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करेगा, लाइक आप भी कुछ टाइप नहीं कर सकते हो जब तक आपकी स्टॉप प्रोटेक्शन को ऑफ नहीं करते। एक सेकंड ऑप्शन इसमें ये होता है कि आप इसकी प्रोटेक्शन को ऑफ करो एंड आप टाइप करने दो, सामने जो पर्सन है, अदर पीपल है, उसे टाइप करने दो, लाइक एवरीवन एक्सेप्शन ऑन करके, एंड देन अगेन क्रिएट अ पासवर्ड। And now if you do like this, now other person can edit on it, not edit also and create something also, like type something also in this document। वो कुछ टाइप भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, बट आपको ये हाईलाइट करेगा ऐसे ब्रैकेट में जो भी लिख रहे हो आप अब आफ्टर द प्रोटेक्शन क्रिएट करने के बाद, ये आपके लिए आप पे भी अप्लाई होता है। तो सेम क्या होगा, प्रॉब्लम आपको क्या दिख रही है इसमें, आपका कंटेंट आप लिख रहे हो शोज इन अ ब्रैकेट के अंदर शो हो रहा है, एंड दिस इज द फीचर ऑफ दिस पासवर्ड ऑप्शन, लाइक अ ट्रैक चेंज। अब जो भी आप कर रहे हो वो आपका ट्रैक हो रहा है। ओके, लाइक आपको पता चल रहा है अगर ये डॉक्यूमेंट मैं किसी अदर पर्सन के साथ शेयर करता हूँ, अगर चेंज करता है तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने इसमें क्या चेंज किया है। अगर आप चाहते हो वो चेंज ही ना कर पाए तो आप सेमली आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, आप एक्सेप्शनल वाला ऑप्शन हटा ही दो, एक्सेप्शन वाला इसमें से ये वाला ऑप्शन अनटिक कर दो। ओके, एंड पहले से जितना लिखा है इसको हटा देते हैं हम। ओके, एंड नाउ अगेन reinforce the protection, create your password, and now you see you also not able to write anything and someone also। अब कोई भी इसमें टाइप नहीं कर सकता, सिर्फ डॉक्यूमेंट को देख सकता है जैसे हम देख रहे हैं। ओके, दिस इज द बेसिक वे टू प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट को हम ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक जब तक आपकी प्रोटेक्शन को स्टॉप नहीं करेगा। लाइक अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज भी कर देता हूँ, मैंने इस सेव ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं एक बार और सेव का ऑप्शन आया है, सेव कर लेते हैं इसे, एंड अगेन आई ट्राई टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट लाइक दिस। इस डॉक्यूमेंट का नेम मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया था ये। ओके, एंड नाउ इफ डॉक्यूमेंट ओपन एंड इफ यू ट्राई टू राइट समथिंग ऑन इट, अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहोगे तो नहीं लिख सकते हो। फर्स्ट आपको यू स्टॉप द प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन सेक्शन ऑफ करना होगा, लाइक अब इसमें कुछ नहीं लिख सकते हो। ये जैसे आप लिखोगे साइड में आ जाएगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो। आप बस देख रहे हो इसमें ये सारे ऑप्शंस अनहाइलाइटेड है, कुछ नहीं शो हो रहा है आपको, कुछ भी हाईलाइट नहीं है, लाइक आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी किसी भी क्लिक करोगे, कोई भी टैब पर क्लिक करोगे, कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स सब कुछ क्या हो रखा है, ऑफ कर रखा है। आप किसी भी क्लिक करके देख लो, कोई भी फंक्शन नहीं होगा। बेसिकली जब तक आप स्टॉप प्रोटेक्शन नहीं करोगे इसमें, जब तक आप स्टॉप प्रोटेक्शन नहीं करोगे, ये कुछ भी इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। नाउ बेटा योर सेकंड टॉपिक इज, ये हमने सिंपली आपको सब करके दिखा दिया है कैसे करना होता है। ओके, सब एडिटिंग सेम जैसे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, ये चीज हमने की है, एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन भी लगाया है इसके बाद। एंड नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैकिंग चेंज। You can use track change feature to track the editing and formatting change made to your document. This is important when more than one person works on a document in Word. Like if you create a document and you share this document with other people and other students also. Like आप एक document create करते हो और इसे other persons के साथ share कर देते हो, like your friends and your colleagues and your staff members. Okay, और in this situation you see, if you open the track change option, अगर आप track change option open करते हो, तो अदर पर्सन इसमें चेंज करेंगे, वो आपको इजीली पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या चेंज किया है। अगर कुछ डिलीट किया है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, सब इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अगर कुछ फॉर्मेटिंग की है वो भी आपको पता चल जाता है। तो फर्स्ट इफ यू चूज द ट्रैक चेंज, तब आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाती है। ओके, सो हाउ टू यूज द ट्रैक चेंज,
Okay, for using the track change option, the track change option is also in a review tab. In review tab, you see the track change. Okay, click on that and click on track change. And now track change is open. ट्रैक चेंज क्या हो गया आपका, स्टार्ट हो गया है. यू सी, अगर आप कुछ भी टाइप करोगे, अभी तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो मेरे पे भी ये क्या करता है, एक सामने बार लाइंस आ जाती है. लेफ्ट साइड पर आप देखोगे एक वर्टिकल लाइन आ जाती है लाइक दिस. जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, एक स्पेस भी दिया तो एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा. दैट मीन्स इस लाइन से ये बताता है कि इस लाइन में चेंजेस होने स्टार्ट हुए हैं, इस लाइन से चेंजेस होने स्टार्ट हुए हैं. अगर कुछ डिलीट करा है तब भी आ जाएगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है तब भी आ जाएगा. लाइक मैं इसमें टाइप करता हुआ जा रहा हूँ. इफ आई मूव द नेक्स्ट लाइन, द लाइन आर शो मी लाइक किस किस लाइन में चेंजेस किए हैं, तो आपको सब चीज क्लियर कर देती है. इस लाइन से आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड द सेकंड डिफरेंस इज, एक आपको इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती हैं. इफ यू यूज द ट्रैक चेंज, सेम यू सी द वर्टिकल लाइंस इज अपीयर. और अब ये इसमें पूरा एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और जिस जिस लाइन में चेंजेस किए हैं उसके आगे एक वर्टिकल लाइन आ गया है लेफ्ट हैंड साइड पे. एंड लाइन इज द डिफरेंट फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम. इट्स बाय डिफॉल्ट ये रेड लाइन शो हो रहा है, ब्लैक भी शो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि रेड ही शो होगा. एंड यू मॉनिटर आल्सो लाइक व्हिच टाइप चेंजेस इज समवन डूइंग. like if someone some delete it in your document, so is a strike through, it show in a strike through position. like अगर मैं करूंगा तो अभी show नहीं होगा ये, because this is my document. if I share this document to other people, if someone delete something on this, so I already know what is deleted. and after that and if someone add something in this document also, अगर कुछ इसमें कोई add करता है, like something add also, like इसमें एक्स्ट्रा लाइन 2-3 लाइन ऐड कर देता है, तो वो भी मुझे एक डिफरेंट कलर में शो होगी. अगर 4 मेंबर्स इसमें 4 पीपल्स वर्क कर रहे हैं, वो अलग अलग इसमें चेंज कर रहे हैं, तो उनका जो चेंज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में शो होगा मुझे. एंड दिस इज एंड आफ्टर दैट दिस थिंग इन माय हैंड, आई वांट टू एक्सेप्ट इट, आई हैव टू एक्सेप्ट और नॉट. लाइक ये मेरे हाथ में है इसके बाद कि मुझे एक्सेप्ट जो चेंज किए हैं वो मुझे एक्सेप्ट करना है नहीं करना है. तो आप लाइन बाय लाइन जो चेंजेस हैं उस पर जाकर उन्हें एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो. ओके, द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट टू फंक्शंस इज देयर. आप मूव टू नेक्स्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हो. अदर सेम लाइक दैट यू कैन रिजेक्ट इट आल्सो. एंड रिजेक्ट ऑल चेंज, आप सिंपल यहाँ पर रिजेक्ट ऑल चेंज भी कर सकते हो. अगर आपको सारे एक्सेप्ट करने हैं तो एक्सेप्ट ऑल चेंज पर भी क्लिक कर सकते हो. ओके, दिस इज द सिंपल थिंग. यू कैन ट्रैक योर document, like which type changes is appear in your document, and you can change also. You see the one thing also, if you move your cursor on the editing part, like if something is deletes and something is added, अगर आप उस पर अपना cursor ले जाओगे तो it shows also like जिस पर्सन ने इसमें चेंजेस किया है उसका नेम भी आएगा, डेट भी आएगा, कब चेंज किया है, टाइम भी आएगा, किस टाइम पे चेंज किया है. एडिट किया है, एडिट का आएगा. फॉर्मेटिंग किया है, फॉर्मेटिंग आएगा. डिलीट किया है, डिलीट आएगा. in picture you see it shows the time and date and name and deleted also. deleted को ये strike through show करता है. like एक line आता है, जो भी डिलीट करता है वो डिफरेंट कलर में शो करेगा, उसको एक लाइन स्ट्राइक थ्रो कर देगा, उसे इस टाइप से शो करता है. ओके, तो ऐसे आप ट्रैक चेंज फीचर यूज कर सकते हो. ये बहुत एक इजी फीचर है. रिव्यू भी कर सकते हो. रिव्यू दैट मींस यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट आल्सो. रिजेक्टिंग दैट मींस यू आर रिव्यूइंग द ट्रैक चेंज. आप देख रहे हो, आप ये भी इजीली इसमें कर सकते हो. आप नेक्स्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हो, नेक्स्ट करके रिजेक्ट भी कर सकते हो. अगर आप एक्सेप्ट वाला ऑप्शन चूज करोगे तो आपके एक्सेप्ट होंगी, एंड इफ यू चूज द नेक्स्ट रिजेक्ट ऑप्शन, द ऑल चेंजेस इज रिजेक्टेड. ओके, एंड आफ्टर दैट जब आप सारा कंप्लीट कर लोगे तो इस टाइप से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. डॉक्यूमेंट कंटेन्स नो कमेंट और ट्रैक चेंज. यू क्लिक ऑन ओके एंड इट्स फिनिश. इट्स लुक लाइक दिस, like something like if I click accept and it shows like this. You are not any comments on track change, no, okay, and it's done. Okay, and इस टाइप से ये आपको आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज वर्किंग विद मैक्स इक्वेशन. Like in Word 2010, you can easily create complex equation by using the equation tool design tab on the ribbon tab. Okay, you can insert equations also in MS Word. Okay, so if I want to insert equations, first click on insert tab, and in insert ribbon in the right hand side आपको equation दिखेगा. Click on that. Small arrow, some ready-made equation is there. आप इनमें से कुछ यूज कर सकते हो. अदरवाइज अपना इक्वेशन आपको डालना है तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करो
अदरवाइज आप सिंपल अगर इक्वेशन पे क्लिक करोगे तो भी आपका इस टाइप से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हो। लाइक आपको अगर इक्वेशन में फ्रैक्शंस यूज करने हैं, choose the fractions like that and insert the value like 2/3, and if you write the plus, all symbols are also available there. If you type something other thing also in it, like plus minus sign is there. If you want to add something like this, like x power 2, like this, x plus, and it's a radical. If you want to a root value in it, you can also insert this value. Okay, with the help of these few options you can create a equation on it, and very easily without any problem like this. लाइक ऐसे हम इसमें एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक सिंपली छोटी सी इक्वेशन आपको इंसर्ट करके दिखाई है, एंड सिंपली आपको ये अगर सेव करना है तो उसके बाहर पर क्लिक कर दोगे और ये आपका सेव हो जाएगा। आपको मैथमेटिक्स का जो नॉर्मली पेपर्स टाइप करते हैं वर्ड में कुछ इस टाइप से उसमें इक्वेशंस टाइप होती हैं। एंड अगर आपको इक्वेशन डिलीट करनी है सिंपली क्लिक ऑन दैट, ये सेलेक्ट हो गया एंड देन क्लिक ऑन डिलीट बटन, इक्वेशन इज डिलीट। ओके, so now you know how to insert a equation. Clear? This is an insert equation. These in book you also see the steps. इसमें भी steps से इन्होंने इक्वेशन आपको करके दिखा रखा है। सेम आप ऐसे इक्वेशन यूज कर सकते हो, डेफिनेटली बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम लाइक दिस। यू कैन डिलीट ऑल्सो, लाइक क्लिक ऑन दैट, आप सेलेक्ट करके सिंपली प्रेस द डिलीट बटन, द इक्वेशन इज डिलीट ऑन योर computer and your document. And saving your equation is other thing also. You can save your written equation for future use. आप अपनी equation को future use में save भी कर सकते हो। After saving your equation will appear on a equation gallery list. You see one equation gallery list on there. This is the equation gallery list. अगर आपको अपनी equation save equations to इक्वेशन गैलरी, अगर मैंने क्लिक कर दिया, इन्होंने बोला कि आपको ये इक्वेशंस क्या गैलरी लिस्ट के लिए सेव करना है, मैंने कहा यस ओके बिल्कुल करना है। सिंपली क्लिक करूंगा तो ये इक्वेशन मेरी गैलरी लिस्ट के लिए सेव हो जाएगी। ओके, अब मैं इसमें अगर अपनी इक्वेशंस को गैलरी लिस्ट से भी बाद में सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर मेरी इक्वेशंस मुझे चाहिए, अभी तो मेरे लिए सर्चिंग में थोड़ा लोड ले रहा है, अदरवाइज आई शो यू। ओके, तो कुछ इस टाइप से आप अपना इसमें कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन को सेव भी कर सकते हैं। Okay, so you can do this by clicking on your written equation to display the right equation and the 3 dots on the left side and word highlight the content of the equation box. Like इसमें एक फीचर भी आता है आपका। Okay, you see, simply आप यहाँ ऐसे भी अपनी इक्वेशन को सेव कर सकते हो। Like click that and you save as a new equation. आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे, आप इक्वेशन एज अ न्यू सेव हो जाएगा। जैसे हमने एक बार वहां से किया था और एक बार आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको ये लगता है कि इक्वेशन आगे भी कभी ना कभी आप यूज करोगे तो आप इक्वेशंस को अपनी इक्वेशन को सेव भी करके रख सकते हो अपनी इक्वेशंस गैलरी में। ओके, एंड नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग एंड रनिंग अ मैक्रो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी यूजफुल टॉपिक इन अ वर्ड। A macro save your time by combining a series of action into a single command. If you use a macro, with the help of macro, you can create a one combination of lines, and you can use these lines and you can use these words again and again without any typing they frequently again and again. Like अगर आपको कोई words है, कोई lines हैं, आपको लगता है कि मैं इस document में मेरे बार बार use होगा, तो you can create the macro of these lines. आप उस lines का या उन words का macro create कर सकते हो और उनको again and again use कर सकते हो। And macro generally होता क्या है? Macro is a series of commands. एक commands का series होता है, that means some lines and some words. Okay, and equations भी हो सकता है, that is recorded so that it can be played back or executed later. आप इसे रिकॉर्ड करके रख सकते हो एंड आप जब भी चाहो आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, and next I explain you how to record a macro. You see the record a macro topic. So first you go in a view tab. Okay, delete it. इसे हम delete कर देते हैं। View tab. In view tab you see the macro. Okay, in which you see the record macro. First click on the record macro, and if you name the macro, एक macro को name दो like a book
वी नेम द मैक्रो इज एड्रेस, जैसे बुक में एक एड्रेस मैक्रो दे रखा है, हम यहाँ भी एड्रेस दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसको कुछ लाइक एक जगह का नाम दे देते हैं, लाइक दिल्ली दे देते हैं। ओके, एंड क्लिक ऑन कीबोर्ड ऑल्सो, यू कैन क्रिएट अ शॉर्टकट की ऑफ दिस मैक्रो। आप शॉर्टकट कीज का क्रिएट कर लो, इसकी हेल्प से क्या होगा, आप इस मैक्रो को इजीली यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको बार बार मैक्रो ऑप्शन में जाना होगा। आप शॉर्टकट कीज की हेल्प से विदाउट एनी एफर्ट, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, यू कैन easily use this macro in your document again and again. Like if I choose the shortcut key like Control A, okay, you see the currently assigned to unassigned, that means ये shortcut key अभी किसी का नहीं है, ये बिल्कुल एक freely shortcut key है, आप इसे create कर सकते हो। unassign आया है, अगर आप Control plus C यूज करते हैं तो you see it's already assigned to edit copy, ये copy का shortcut key है तो अब इसे यूज नहीं कर सकते। that's why we use the Alt plus A. Okay, click on assign and close. Okay, now your macro is starting. You see the arrow symbol is different now. Its symbol is like a macro, ये macro का symbol होता है। अब जो भी लिखूंगा मैं इसमें वो रिकॉर्ड हो जाएगा। लाइक अगर मैं लिखता हूँ एड्रेस, एक सिंपल सा एक एड्रेस लिखते हैं, दिल्ली लिखा है तो दिल्ली का ही कोई भी एक एड्रेस ले लेते हैं, लाइक सदर बाजार, सदर बाजार, न्यू दिल्ली। ओके, ये सिंपली मैंने एक छोटा सा एड्रेस लिखा है। अगर ये एड्रेस मुझे बार बार यूज करना है, आप इसे सिंपली कुछ भी और भी ऐड कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। लाइक इसमें कुछ लाइन भी ऐड कर देता हूँ। ओके, यू सी हमने इसमें सिंपली एक लाइन लिख दी। अब ये रिकॉर्ड हो गया है। मुझे अगर आप फिर आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करना होगा, क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग, एंड व्हेन यू क्लिक द स्टॉप रिकॉर्डिंग, नाउ दिस इज रिकॉर्डेड। जितना आपने लिखा है रिकॉर्ड हो चुका है। ओके, एंड यू नो द शॉर्टकट की, आपने एक शॉर्टकट की भी क्रिएट किया है इसके लिए। ओके, यू सी द रिकॉर्ड अ मैक्रो, द स्टेप्स इज आल्सो द सेम। इस क्रिएट अ एड्रेस, इनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन अलग था, हमने यहाँ पर दिल्ली दे दिया, दिल्ली डाल दिया। इन्होंने शॉर्टकट की सेम स्टेप से क्रिएट किया लाइक दिस। ओके, प्लैनेट, इन्होंने एक अपना एड्रेस लिखा है, हमने एक थोड़ा डिफरेंट एड्रेस लिखा है। ओके, आप नीचे भी ऑप्शन आता है, वहां से भी स्टॉप कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्टेटस बार इज आल्सो शो द स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन। Okay, and the running macro, how to run the macro? The running macro is using by the toolbar. Toolbar का यूज करके मैक्रो को कैसे रन करें? लाइक अगर मुझे मैक्रो को रन करना है, क्लिक ऑन दैट एंड व्यू मैक्रो, क्लिक ऑन व्यू मैक्रो, एंड द एड्रेस मैक्रो इज देयर। हमने एड्रेस नेम दिया था मैक्रो का, क्लिक ऑन दैट रन, एंड नाउ योर मैक्रो इज इंसर्टेड। आपने जो लिखा था वो आपका यहाँ पर आ गया है। ओके, सेम लाइक दैट again if you want to run, click on that and the macro is appear in front of you। जो आपने इसमें टाइप किया वो आपके सामने अगेन एंड अगेन आप इसे यूज कर सकते हो। एंड लाइक सब डिलीट करके अगर मैं शॉर्टकट की का यूज करके करूं, alt plus A, alt plus A, you see alt plus A, alt plus A, ये इसलिए आ रहा है ऐसा, थोड़ा अलग दिख रहा हो आपको, बिकॉज ये मैक्रो कुछ इसी तरीके का आपका रिकॉर्ड हुआ है। आप इसे जैसा रिकॉर्ड करोगे इसी टाइप से आपको शो करेगा। देखो, आप बार बार जितनी बार भी शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ मैं, ऑल्ट प्लस ए, कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं, ऑल्ट प्लस ए, जितनी बार भी ऑल्ट प्लस ए यूज करोगे, यू सी आपका मैक्रो टाइप होता चला जाएगा। तो बेसिकली आपको मैक्रो आप इस टाइप से भी आप क्रिएट कर सकते, दोनों टाइप से आप इसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टूल बार। Okay, now you know how to create a macro and how to use the macro in your computer, in your document. And the macro is a series of commands and instructions that you group together as a single command to accomplish a task automatically. Okay, that means not automatically run the macro. आप रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट आपको यूज करने के लिए टूल बार एंड सम शॉर्टकट कीज तो यूज करना होता है, बट काफी एफर्ट कम हो जाता है। टिपिकली यूजेस ऑफ मैक्रो आर टू स्पीड अप रूटीन,
रूटीन को अपने लाइक आप कोई वर्क कर रहे हो, आपको कोई वर्ड्स एंड लाइन्स हैं जो बार बार यूज करना है, तो एडिटिंग फॉर्मेटिंग में टाइम कंज्यूम होता है, तो आप उसको मैक्रो बनाकर बार बार उसे शॉर्टकट की हेल्प से यूज कर सकते हो। ओके, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग मैक्रो भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट कीज भी क्रिएट कर सकते हो। आप एक से ज्यादा मैक्रो भी क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सेम स्टेप्स को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोज भी यूज कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज the next topic is using mail merge. You can use the mail merge feature to produce or personalize letter for each person or your mailing list. लाइक आपने एक मेलिंग लिस्ट बनाया हुआ है, अगर आपको सबको लेटर भेजना है तो आप मेल मर्ज की हेल्प से बहुत इजीली ये वर्क कर सकते हो। परफॉर्मिंग अ मेल वर्ज इज यूजफुल, ये एक बहुत यूजफुल आपका फीचर है। इफ यू वांट टू सेंड द सेम डॉक्यूमेंट, अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट सेंड करना है अदर पीपल्स को, लाइक कोई ग्रीटिंग कार्ड या कोई अनाउंसमेंट सेंड करनी है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस feature. You can easily operate each step of the mail merge process with the help of mail merge feature. आप mail merge फीचर को उसके जो स्टेप्स हैं कुछ उसके थ्रू इजीली इसे यूज भी कर सकते हो। उसको यूज भी करना बहुत इजी है, बिना डॉक्यूमेंट को आप ऑफ करे इसको यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस यू सिलेक्ट। एंड ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है आपने कौन से ऑप्शंस यूज करे हैं। डायलॉग बॉक्स में अपीयर नाउ एंड देन, बट यू कैन फोकस मोर ऑन प्रोड्यूसिंग द फाइनल डॉक्यूमेंट एंड लेस ऑन द प्रोसेस। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आपको कैसा लगता है ये डॉक्यूमेंट। फर्स्ट, क्रिएट ऑन द मेलिंग टैब। फर्स्ट आप मेलिंग टैब पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्रिएट योर स्मॉल लाइक जैसे इन्होंने कर रखा है, पहले एक स्टॉप से एक छोटा सा एक मैसेज बनाते हैं लाइक दैट। ओके, फरवरी, अभी तो हम इनका नहीं लिखते, अपना लिखते हैं, जुलाई लिखते हैं, जुलाई चल रहा है ना, जुलाई। एंड द डेट एक कोई भी एक डेट ले लेते हैं, लाइक 1 ले लेते हैं, 2021। ओके, एंड सेम लाइक दैट इन्होंने मैसेज लिख रखा है, विश यू एंड योर हैप्पी फैमिली हैप्पी एंड कलरफुल होली। सेम सेंटेंस लिख देते हैं। जुलाई में तो वैसे होली नहीं आता है, बट लिख लेते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग। मीन तो ये है कि हमें देखना है ये वर्क कैसे करेगा। योर विश यू एंड योर फैमिली हैप्पी होली, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसे छोटा ही रखेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज विद रिगार्ड्स XYZ। ओके, ये हमने एक छोटा सा मैसेज बना दिया। अब नाउ क्लिक ऑन मेल मर्ज, सॉरी मेलिंग टैब। ओके, इन मेलिंग टैब देन क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन एंड क्लिक ऑन लेटर। लाइक आप एक लेटर टाइप बना के भेज रहे हो, लेटर की टाइप पे फॉर्म में ले आना है आपको। एंड नथिंग हैपन ऑन द स्क्रीन, कुछ नहीं होगा। वर्ड सेटअप फॉर अ मेल मर्ज, वर्ड क्या कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज के लिए सेटअप कर रहा है। कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, आप देखो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, एक हल्की सी स्क्रीन फ्लक्चुएट हुई, अब सेम आपको दिख रहा है, कुछ ज्यादा नथिंग चेंज इन इट। And then after that click on select recipient option and then click on recipient option. You see the recipient option is there and type a new list. आपको अगर एक न्यू लिस्ट बनाना है, यस हमें न्यू लिस्ट बनाना है, जिसको भी आपको ये भेजना है उनका आपके पास लिस्ट है तो आप उसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप न्यू लिस्ट पे क्लिक करो एंड एक सिंपल सा टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा, न्यू एड्रेस लिस्ट का डायलॉग बॉक्स, एंड यू कैन क्रिएट योर लिस्ट लाइक मिस्टर 2-3 मेंबर्स के नेम लेंगे हम, ज्यादा मेल नहीं डालेंगे, एंट्रीज नहीं डालेंगे इसमें, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए रखेंगे बस से। लाइक अब कंपनी नेम जो आपका मन आए वो डाल सकते हो, ये तो स्पेसिफिकली बहुत जनरली है। आप ऐसा नहीं है सारी फील्ड फिल करो, इट्स नॉट अ नेसेसरी, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है आप सारी फील्ड फिल करो इसका। ओके, एंड द जिप कोड इज लाइक दैट, आप जिप कोड इसमें डाल सकते हो। क्लिक ऑन न्यू एंट्री, अगर आप न्यू एंट्री डालनी है क्लिक ऑन न्यू एंट्री मिस। नेक्स्ट इज अगेन another member like this and same, you can write the company name, address line also. Okay, and you can use this feature again and again. like मुझे आगे का नहीं भरना है तो नॉट नेसेसरी, like आप अगर
कुछ चेंज इसमें करना भी चाहो तो अदर जिसका आपने फिल कर दिया तो वो भी इजीली कर सकते हो। लाइक अभी मैं 2 एंट्रीज रखता हूँ बस इसमें एंड क्लिक ऑन ओके। लाइक मेरी रेसिपिएंट ट्रिप इज आल्सो सिलेक्टेड। आप इसे सेव करना होगा आपको, तो आप इसे सेव कर लीजिए इसमें किसी अदर नेम से। लाइक मैंने एड्रेस के नाम से तो पहले ही सेव कर रखा है, एड्रेस 2 रख देते हैं इसका नेम। क्लिक ऑन सेव एंड नाउ योर रेसिपिएंट लिस्ट इज created. Okay, and the next option is in which also show the same steps। ये जो हमने किए हैं सेम स्टेप्स आपको ये दिखा रहा है इसमें। सेम जैसे आप स्टेप्स को देखकर भी बहुत इजीली जो वर्क बता रहा है इसको कर सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड थिंग। नेक्स्ट इज आप एडिटिंग में जाकर भी इसमें एडिटिंग कर सकते हो अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है। लाइक आपको लगता है कोई एडिटिंग इसमें मुझे करना है तो आप इसमें कर सकते हो। आपको कुछ चाहते हो कि स्पेसिफिकली 2 या 3 मेंबर्स ना आए, ये वाला आए या ये वाला ना आए, तो यहाँ से डीसेलेक्ट या सेलेक्ट उन्हें कर सकते हो। ओके, लाइक नीचे तो कुछ नहीं है तो हम इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं एंड क्लिक ऑन ओके। इस टाइप से इसमें एडिटिंग कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज click on address block। Okay, now you click on address block। When you click on address block, it shows your name, how your name is display on that। आपको ये साइड में आपको दिख रहा है प्रीव्यू किस टाइप से आपका शो होगा। आप आगे इसमें बैक एंड आगे पीछे कर सकते हो और देख सकते हो कि अदर पर्सन का किस टाइप से शो हो रहा है इसमें, लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ से रिसिपेंट नेम है। अगर आपको इसमें ऑप्शंस भी देगा, आपको पोस्टल एड्रेस इंसर्ट कराना है। अगर आप टिक कर दोगे तो नहीं आएगा। वहां पर देख रहे हो आपको क्या इफेक्ट दिख रहा है, कंपनी नेम कराना है, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो टिक पे बेल्ट है, आपको एड्रेस कंटेनिंग डेस्टिनेशन कराना है, नहीं आएगा। सेम जो चेंजेस आप नहीं चाहते हो आए, आप चाहते हो सारा आए तो सब आ जाएगा, अदरवाइज यू कैन डीसेलेक्ट इट। ओके, लाइक दैट। नेम भी हटाना तो नेम भी आप यहाँ से हटा सकते हो। ओके, एंड द एड्रेस ब्लॉक इज नाउ डिस्प्लेज देयर। लाइक ये तो मैंने डबल क्लिक कर दिया तो एकदम से आ गया। मैं आपको शो कर देता हूँ ये किस टाइप से आएगा। आप सिंपली एड्रेस ब्लॉक में जाना एंड देन इट्स ऑल इज थिंग इज ओके, क्लिक ऑन ओके बटन एंड नाउ एड्रेस ब्लॉक इज देयर। दैट मीन्स जहां पर आपका एड्रेस ब्लॉक है जो आपको प्रीव्यू में दिख रहा था वो यहाँ पर शो होगा आपको। ओके, यू कैन इंसर्ट अ ग्रीटिंग लाइन आल्सो। लाइक क्लिक ऑन ग्रीटिंग लाइन लाइक दिस, डियर, लाइक डियर टू, जो भी आपको इसमें चूज करना है। एंड आपको नहीं चाहिए कुछ भी तो आपके अकॉर्डिंग है, आप नन भी यू चूज कर सकते हो। चूज द डियर लाइक दिस। The greeting line is only like dear and sir or ma'am, is this type you can insert it। अब you can change also like to whom it may concern, इस टाइप से भी आप इसे कर सकते हो। रिसीव करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो इस टाइप से आप यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लाइक हम डियर सर एंड मैडम वाला ही चूज करते हैं यहाँ पर एंड क्लिक ऑन ओके। ओके सर, ग्रीटिंग लाइन जनरली ऊपर होना चाहिए बिकॉज इस जगह बेस्ट रही ग्रीटिंग लाइन के लिए, तो यहीं पर हम ग्रीटिंग लाइन अपना यूज कर लेते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर दिस इफ यू डोंट वांट टू इंसर्ट एनीथिंग ऑन इट, लाइक आपका कंप्लीट हो गया है, आपको कुछ नहीं इंसर्ट करना है, तो आप एक प्रीव्यू रिजल्ट देख सकते हो। उसका प्रीव्यू रिजल्ट इज ऑप्शन देयर। यू सी, आपको दिखाएगा आपको आपका एक एक सेपरेट आप अलग अलग डिफरेंट फाइल्स को देख सकते हो। ये आपका सेकंड वाला दिखा रहा है, यहाँ से 1 वाले को देख सकते हो आपको किस टाइप से शो होगा ये। ओके, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द 1 अगर अदर पर्सन्स भी हैं लाइक 10, 50, 20, 100, 200, तो सेपरेट सबका अलग अलग इस टाइप से एक लेटर क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंड इफ यू चेक द ऑल थिंग इज परफेक्ट एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज। आप फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक कर सकते हो अगर आप एवरीथिंग इज ओके अकॉर्डिंग टू यू। क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, तो सेपरेट सबका अलग बनेगा। यहाँ से आप सिंपल करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो सिर्फ जो करंट पे अभी आपको दिख रहा है सिर्फ इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। ऑल पे क्लिक करोगे तो जितने भी आपकी फाइल में है इस डॉक्यूमेंट में सबका ही सेम क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ से आप पेज नंबर सेट कर सकते हो। लाइक अगर डिफरेंट काफी सारे पेज नंबर है तो आपको अगर लाइक मुझे 8 से 9 चाहिए, 8 से 10 तक का चाहिए, तो वहां से भी आप इसमें फॉर्म 8 to 10 चूज कर सकते हो। अभी तो ऑल है, सिर्फ 2 ही इसमें डॉक्यूमेंट है, तो ऑल पे क्लिक करें आप एंड क्लिक ऑन ओके। ओके, नाउ इट्स क्रिएट अ सेपरेट डिफरेंट डॉक्यूमेंट, एक अलग डॉक्यूमेंट बन जाएगा लाइक लेटर्स के नाम से। लाइक लेटर्स 1 के नाम से बना है बिकॉज आई ऑल्सो क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट ऑल्सो।
पहले भी मैंने किया हुआ है, तो इसमें एक लेटर 1 के नाम से बनाए। एंड यू सी इसमें 2 एंट्रीज थी, 2 हमने रेसिपिएंट्स नेम डाले थे, तो दोनों के ही सेपरेट अलग अलग लेटर बन गए। ओके, सो ऐसे हम मेल मर्ज फीचर को यूज करते हैं बेसिकली अलग अलग सेपरेट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। ओके, सो you see the mail merge is the method of taking data from the database। ये एक मेथड है, डेटाबेस से डेटा लेते हैं एंड इंसर्ट इनटू अ डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मेल मर्ज, व्हाट इज द बेसिक बेनिफिट्स? इजी टू मेक अ चेंज, इजीली हम लेटर में चेंज कर सकते हैं, एंड सो फॉर दैट चेंज टू हैपन इन एवरी लेटर, वो चेंज सब लेटर में इजीली हो जाएंगे। ओके, लाइक जैसे डेट चेंज एग्जाम्पल के लिए बता रखा है। once the merge has been set up, hundreds of letter can be produced very quickly। अगर आपने कोई मर्ज सेटअप कर दिया, आपके पास रेसिपिएंट लिस्ट है, तो आप इसमें हंड्रेड्स ऑफ लेटर विदाउट एनी प्रॉब्लम बहुत क्विकली बना सकते हो। मच इजियर टू प्रूफ रीड करना भी इजी है, बिकॉज सब लेटर का कंटेंट बेसिकली सेम ही होता है, तो आप एक लेटर को रीड करो, बाकी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लाइक दिस यू कैन क्रिएट अ लेटर्स इन विद द मेल मर्ज ऑप्शन। Okay, and you use mail merge fields which are placeholder to identify the location in your document where recipient address and greeting should appear। like आपको दिखा आपने एड्रेस ब्लॉक एंड recipient लिस्ट लाइक दिस, एंड ग्रीटिंग लाइन जहां पर आपको शो हो रहा था, ये आपको बताता है कि आप ये प्लेस होल्डर बोलते हैं जनरली से। आप इन्हें जहां पर सेट करोगे, आपका जो कंटेंट आपने फीड किया है वो वहीं पर शो होगा। जैसे एड्रेस ब्लॉक जहां पर आपने लगाया, आप इसे चेंज कर सकते हो, एड्रेस ब्लॉक को आप ऊपर या नीचे अपने अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हो। ओके, एंड ग्रीटिंग लाइन ऑल्सो, ऑल थिंग इन योर हैंड। ओके बेटा, एंड दिस इज योर चैप्टर्स एंड